is dissatisfied when Narad, his guru, comes. Then he's asking, why am I not happy? Having written all the scriptures, why am I not happy? So then the conversation. We like, हम लोग मनता है, कोई की बात सुने मनता है, हम लोग मनता है नहीं लोग दूसरे ने कुछ बतिया है. तो भागवतम के प्रेजेंटेशन वही रकम है कि what two sadhus are discussing. तो यहाँ पे I am picking this from 11th canto of Bhagavatam. 11th canto of Bhagavatam. कृष्णा एंड उद्धव. कृष्णा एंड उद्धव. उद्धव के क्या एक खूबी बताओ. उद्धव, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट उद्धव? उद्धव के बारे में कौन सी खासियत है? उद्धव इज वन पर्सन who looks exactly like Krishna. He's a very great devotee. तो उद्धव और कृष्णा के संवाद. और उद्धव बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं. तो विल जस्ट रीड थ्रू. मैं केवल ट्रांसलेशंस पढ़ूंगा सो दैट वी कैन गेट ऑल द स्टोरी. ठीक है. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 So we'll read from Srimad Bhagavad Puran, Canto 11, titled General History, Chapter 7, Lord Krishna instructs Uddhav. तो कन्वर्सेशन होता है भगवान और उद्धव के बीच में. श्री सुखदेव गोस्वामी said, O king, the supreme personality of Godhead, Lord Krishna, thus instructed his pure devotee Uddhav. परम पुरुषोत्तम भगवान परम पवित्र भक्त उद्धव को बोल रहे हैं. Who was eager to receive knowledge. उत्सुक है. जैसे आप लोग को मैं देखता हूँ, I see one thing very special about सब आप लोग सब enthusiastic है. You are sincere. You want to be saved. You want to love Krishna. Otherwise, you could have said this. Let it go. तो eager मांगो रहो. तो instructed his pure devotee Uddhav, who was eager to receive knowledge from the Lord. Uddhav then offered obeisances to the Lord and spoke as follows. हम लोग समझ सकता है वाई हम लोग कहा है साधना वाला प्रोग्राम करता है, कहा है हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, मॉर्निंग हम भगवान की आरती करता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना कौन सी गाता है? वंदे गुरु श्री चरण. So you offer obeisances to the Guru. तो यहाँ से शुरू होता है. उद्धव क्या किया? पहले भगवान को obeisance offer किया, फिर स्पीक किया. श्री उद्धव said,
My dear Lord, you alone award the results of yoga practice, and you are so kind that by your own influence you distribute the perfection of yoga to your devotees. भक्ति का सिद्धि जो है अपने आप से नहीं आता है, जो भगवान देना चाहते हैं तब आता है। उद्धव कहता है भगवान आप देते हो। Thus you are supreme soul who is realized through yoga, and it is you who are in the origin of all mystic power. For my supreme benefit, you have explained the procedure of giving up the material world through the process of sannyas or renunciation. इससे पहले भगवान renunciation के बारे में बात करें, कैसे सब चीज छोड़ दो। तो उद्धव बोले भगवान आप हमारा भलाई के वास्ते हमें ये बात बताया है। My dear Lord, O supreme soul, for those whose minds are attached to sense gratification, and especially for those bereft of devotion unto you, such renunciation of material enjoyment is most difficult to perform. That is my opinion. ऐसे नहीं कि उद्धव अब भगवान बोल दी से उद्धव अपने से कुछ बोले। उद्धव बोले भगवान आप हमारा भलाई के वास्ते बोलता है, लेकिन हमारा विचार है कि जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा है या जिसके इच्छा है इंद्र तृप्ति के, उसके ये बात बहुत हार्ड लगी। O my Lord, I am most foolish because my consciousness is merged in the material body and bodily relations which are all manufactured by your illusory energy. उद्धव कहता है इंटेलिजेंट बोले भगवान बोले हम एकदम मूर्ख है, हमारा तो मन बोले सभी संसार की चीज में लगा है, जो संसार तुम्हार माया के बनावट है। पोएटिक। तो फिर बोला कि हाँ, और इसीलिए बोले भगवान आपके माया के प्रभाव से thus I am thinking I am this body and all these relatives are mine. Therefore my Lord, please instruct your poor servant. Please tell me how I can very easily carry out your instruction. बोले भगवान आप बताओ हम आपकी आज्ञा कैसे कर पाएगा। My dear Lord, you are absolute truth, the supreme personality of Godhead, and you reveal yourself to the devotees. भगवान आप परम सत्य है, व्यक्ति है, पुरुषोत्तम है, और आप अपन भक्त के अपने आप से जन्माता है। तो besides your lordship, I do not see anyone who can actually explain perfect knowledge to me. Such a perfect teacher is not to be found even among the demigods in the heaven. Indeed, all of the demigods, headed by Lord Brahma, are bewildered by your illusory potency. They are conditioned souls who accept their own material bodies and bodily expansions to be the highest truth. बोले सब एक व्यक्ति जो अलग अलग शरीर में है, वो यही मान के बैठा है कि हमारा शरीर ही सबसे, ब्रह्मा जी भी वही सोचे है, हम लोग भी वही सोचता है, जानवर भी वही चीज सोचे, पक्षी भी वही चीज सोचे कि आई एम द बेस्ट। संसार के प्रॉब्लम ही यही है, सबको मांगे कंसीडर करे आई एम द बेस्ट। तो द सुप्रीम लॉर्ड रिप्लाइड, भगवान क्या जवाब दे? Generally, those human beings who can expertly analyze the actual situation of the material world are able to raise themselves beyond the inauspicious life of gross material gratification. बोले जो व्यक्ति लाइफ के एनालाइज कर सके ना, कभी कभी हम लोग कोई सिचुएशन हो, हम लोग लब से अभी पूरा बात समझा नहीं है, लेकिन दो चार बात और पकड़ा दिया, सिचुएशन और खराब हो गया। तो भक्त पंचिरे भक्त मांगो धीर, तभी से बोले भगवान हमको दुई कान दी से और एक मुंह दी से, पहले दुई दफे सुनो तो एक दफे बोलो, नहीं तो फिर तो भगवान बोले कि जो एनालाइज करे सके हैं वो एक्चुअल सिचुएशन के, तो वो सके अपन आपके रेस के। हम लोग के लिए अपन आपके जैसे कहीं पे प्रॉब्लम हो लगा ना, तो हम लोग कौन सी कहता है वहां से धीरे से हो लेता है, तो हम नहीं मनता बझान में पड़े। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी, ऐसे संसार में भी हम लोग इस संसार के बझान में अगर नहीं मांगता है पड़े, तो भगवान बोले कि सिचुएशन एनालाइज करके उससे उठ जाओ, उससे उठे पड़े। An intelligent person, expert in perceiving the world around him and in applying sound logic, can achieve real benefit through his own intelligence. बोले भगवान बोले अगर मुख्य थोड़ा से अपन बुद्धि और लॉजिक कॉमन सेंस यूज करेगा तो हो सकता है अपन आपके अपलिफ्ट करें। Thus sometimes one acts as one's own struggling spiritual master. इतना सुंदर बात भगवान बोले।
भगवान बोले इसके वास्ते कभी कभी आपन गुरु अपने बने पड़े। गुरु के काम कौन सी हम लोग के गुरु गु मतलब कॉम्प्लिकेटेड अनक्लीन कॉन्टेमिनेटेड सिचुएशन, रू मतलब उसमें से हम लोग के पुल आउट कर ले, जन्म मृत्यु के चक्कर से हम लोग के पुल आउट कर ले, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर से हम लोग के पुल आउट कर ले। तो यहाँ पे भगवान बताए हैं उद्धव के कि एक्चुअली सबसे पहले तो हम ही लोग के अपन गुरु बने पड़ी, तो हम लोग के अपन आप चूज करे पड़ी व्हाट आई वांट टू डू व्हाट आई डोंट वांट। जब एडम एंड ईव के बोली भगवान की ये एप्पल नहीं खाना, फॉरबिडन एप्पल है, तो एडम एंड ईव के अपन ओन गुरु बने के रहा कि मैं भगवान की बात सुनना चाहता हूँ। एप्पल नहीं फॉरबिडन रहा, यहाँ पे बात है वर्ड ऑफ गॉड, भगवान जो बोला है वो धर्माम तो साक्षात भगवत भाई। जैसे भगवान बोले महाभारत में हम लोग बोला स्टोरी जनता ना, युधिष्ठिर महाराज के जब अश्वत्थामा हाथी मारा गिरा तो भगवान ने युधिष्ठिर के बोले बोल दो अश्वत्थामा मर गए। बोले इसे अश्वत्थामा के नाम सुन के द्रोणाचार्य कमजोर हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले हम तो धर्मराज है, हम कहा सकते झूठ बोले नहीं बोले। तो भगवान बोले लेकिन हम बताता है। तो बोले युधिष्ठिर महाराज बोले अश्वत्थामा elephant is killed। तो देखो बुद्धि लगाइस ना युधिष्ठिर महाराज, अपन बुद्धि लगाइस कौन जी बोले अश्वत्थामा elephant is killed। तो द्रोणाचार्य था एलिफेंट नहीं सुने। तो कभी कभी हम लोग अपन मटीरियल इंटेलिजेंस मांगेगा लगाए सिचुएशन में, यू स्टिल हैव टू सफर द कर्मा। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के इंटेलिजेंस कौन सी रहा कि भगवान बोले हैं दैट इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। लेकिन हम लोग युधिष्ठिर महाराज मांगे से भगवान के आउट स्मार्ट करे ना कि हमारी सत्यता भी रुक जाए और भगवान की बात भी फॉलो जाए। जो चीज भगवान बोले वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो यहाँ पे बोले कि हम लोग के sometimes one acts as one's own instructing spiritual master. In the human form of life, those who are self-controlled and expert in spiritual science of Sankhya can directly see me along with my potencies. ठीक है, जो लोग expert है spiritual science में वो लोग तो भगवान के देख लेंगे। Although the Supreme Lord can never be captured by ordinary sense perception, okay, in this world there are many kinds of created bodies, some with one leg, others with 2, 3, 4 or more legs, and still others with no legs. But of all these, the human form is actually dear to me. भगवान उद्धव के बोले कि मनुष्य योनि जो है वो हमें एक्चुअली दिया है। भगवान के लड़कन सब है, भगवान सबके देख रेख करे, लेकिन भगवान पे जो मनुष्य दिया है तो ये हम लोग के फर्स्ट इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हम लोग मनुष्य मतलब वी आर डियर टू कृष्ण, है ना। तो फिर जब कोई हम लोग के डियर है और वो कुछ अनुचित कर दे तो हम लोग कितना खराब लग जाए, हर्ट लग जाए। हम लोग उर्गम से सोचो कि भगवान बताइए से कि हम मनुष्य दिया है तो हम लोग के भगवान के अनुचित करे तो भगवान कैसे हर्ट हो जाए। Although I, the Supreme Lord, can never be captured by ordinary sense perception, those situated in human life may use their intelligence and other faculties of perception to directly search for me through both apparent and indirect ascertained symptoms. बोले मनुष्य जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सके भगवान के खोज करे। Maharaj, in this regard, sages cite a historical narration concerning the conversation between greatly powerful King Yadu and an Avaduta. अब कृष्ण बता है उद्धव के महाराज यदु और अवधूत के कॉन्वर्सेशन कि वो लोग दुई जने कौन सी कैसे बात करे। Shri Yadu said, Maharaj Yadu once observed a certain Brahmana, Avadut, who appeared to be quite young and learned, wandering about fearlessly. Being himself most learned in spiritual science, the king took the opportunity and inquired from him as follows. तो राजा पूछे है ये ब्राह्मण से। Shri Yadu said, O Brahmana, I see that you are not engaged in any practical religious activity. बोले ऐसे पूजा पाठ में तुम लगा नहीं है, ऐसे कुछ करता है, ऐसे तो आदमी ऐसे सब करे ना। And yet you have acquired the most expert understanding of all things and all people within this world. भाई तुम पूजा पाठ तो करता नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ कैसे राइट आएगी ना। तो kindly tell me, sir, how did you acquire this extraordinary intelligence and why are you traveling freely throughout the world, behaving as if you were a child? भक्ति में हम लोग कैसे रह के हैं, कल हम
बात करता रहा रात के प्रोग्राम के बाद आया कि एक्चुअली डिवोटी कैसा होना है, डिवोटी सिंपल है, सिंपल, या तो नाइव को क्या कहते हैं, नादान होता है। जब हमारा हृदय नादान होता है, जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी जगह छोटा बेबी होता है, नादान होता है, वो सभी के गोद में चला जाता है? तो सब लोग के स्नेह होता है कि नहीं? तो वही रकम डिवोशनल लाइफ में, भले हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग उम्र लाए हैं, कोई जवान है, कोई क्या है, हृदय की दशा कैसे होनी चाहिए? नादान, सिंपल होना चाहिए। कृष्णा में सिंपल फेथ होना चाहिए। वो तो के कौन सी बोले, कोई अपराटस लगाया कि टेस्ट नहीं करेगा, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी टेस्ट करी इसमें से मुझे यार निकले कि नहीं निकले। भगवान बोले है कि हम प्रोटेक्ट करेगा तो हम करेंगे, फिर टेस्ट करी। कभी कभी हम लोग ऐसे प्रार्थना करता, भगवान अगर तुम है, राजेश खन्ना के गाना निकली ना, कौन सी, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। भगवान के मुख चैलेंज करते हैं, भगवान अगर तुम है, भगवान। तो फिल्म में दिखाया कि हाँ भगवान है, तो फिर कोई ज्योति निकला और उसकी सिचुएशन चेंज हो गई। तो उसने सत्यवान सावित्री माफी, अगर भगवान तुम है तो हमारे पति के जीवित कर दो, तो हम विश्वास करें कि तुम है। नहीं तो नहीं है, नहीं ऐसे नहीं, नादान हम लोग करें। भगवान सुप्रीम है, जैसे छोटा बच्चा, जैसे कोई उसके मिठाई दे, लड़का अट्रैक्ट हो गया, वही हम कृष्णा हम लोगों के सिंपल फेथ में, कॉम्प्लिकेटेड फेथ है तो हम लोग के डाउट कर लीजिए। तो जनरली ह्यूमन बीइंग्स वर्क हार्ड टू कल्टिवेट religiously economic development, sense gratification and also knowledge of the soul, and their usual motive is to increase the duration of life, acquire fame and enjoy material life. धर्म अर्थ काम मोक्ष आदमी क्या करे मांगे, इतना सुंदर से कृष्ण बोले, सिंपल सिंपल वर्ड में बोले। कृष्ण बोले जनरली सबको कौन सी मांगे, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, सबको मांगे लंबा जीवन, अक्वायर फेम, नाम मांगे सबको ही, और मटीरियल। सब आदमी धर्म अर्थ काम करे भी ये सबके वास्ते करे। तो कृष्ण बोले, यू हाउएवर ऑल्दो केपेबल, लर्नड, एक्सपर्ट, हैंडसम and most eloquent, are not engaged in doing anything, nor do you desire anything. Rather, you appear stupefied and maddened as if you were a ghostly creature. यदु महाराज बोले लड़का के, ब्राह्मण के, बोले तुम एक्सपर्ट है, केपेबल है, तुम्हारा अंग सब बराबर है, तुम कुछ करे लायक के है ना, तुम लर्नर्ड है, तुम हैंडसम है, और बात में भी चोक है। तो बोले लेकिन तुम कुछ करता नहीं है। तो although all people within the material world are burning in the great forest of fire of lust and greed, you remain free and are not burned by that fire. बोले सबको जैसे जंगल में आगी लग गया, हम लोग के भी सबके आगी लगा है। हम लोग के क्या आगी लगा है? लस्ट और ग्रीड। लस्ट मतलब भोग करना। हम लोग क्या चाहते हैं? आई वांट टू बी एंजॉय। हम अपन घरे भी सिंपल रहता है, आज बिना हमसे पूछे बनाई दिया, आज कौन सी बनाई दिया, तो मैंने पूछा शिंदी आज कौन सी खाएगा, समझा के क्या है हम लोग, बिकॉज नहीं चाह, वी वांट एवरीथिंग टू बी आवा, तो उसके बजाय लस्ट और ग्रीड, लोभ। लोभ मतलब हम लोग मतलब उसके शेयर भी आए, उसके शेयर भी आए, साक्षिया मतलब ले। तो फिर बोले कि you are just like an elephant who takes shelter of a forest fire by standing within the water of the Ganges river. तो बोले जब जंगल में आग लग जाए तो जानवर क्या करे, सब गंगा किनारे भाग जाए, पानी किनारे भाग जाए। तो कूलिंग इफेक्ट्स है तो हीट इफेक्ट फील नहीं करो। O Brahmana, we see that you are devoid of any contact with material enjoyment and that you are traveling alone without any companion or family members. Therefore, because we are sincerely inquiring from you, please tell us the cause of your great ecstasy that you are feeling within yourself. Lord Krishna continued, the intelligent king Yadu, always respectful to the Brahmanas, waited with bowed head as the Brahmana, pleased with the king's attitude, began to reply. भगवान कौन सी बोले? डिवोशनल सर्विस में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली से? कैच वर्ड क्या है? ब्राह्मण कहा है उसके इंस्ट्रक्ट करीस या कहा है उसके बताइस। प्रभु जी सुंदर वर्ड यूज करीस। कृष्ण कॉन्शियसनेस में एटीट्यूड इज व्हाट मैटर्स।
If you don't have the right attitude, then knowledge doesn't become revealed. अभी हम लोग कीर्तन गाया ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। सब नॉलेज सबके हृदय, पूरा भागवतम आपके हार्ट में है। ये तो हम लोग बुक में से पढ़ता है, ट्रांसलेशंस पढ़ता है, लेकिन द भागवतम इज ऑलरेडी इन योर हार्ट। इसके खाली कैसे करे के है? प्रकाशित। सुबह सुबह में आया यहाँ पे, तो बत्तियां लगा रहा, तो हम यहाँ चैंट करता रहा, बत्ती लगा रहा। लेकिन जब माता जी आए तो सब स्विच ऑन कर दी। हम नहीं जानता था कि स्विच यहाँ लगा है, मैं तो ऑन कर लेता। बट when somebody knows, why is it enlightened रहने की जगह? वही रखा हम लोग के नॉलेज है, तो गुरु हम लोग के लाइफ में आवे, भगवान हम लोग के लाइफ में आवे, तो भगवान जाने कहाँ स्विच है इसके, तभी से हम लोग के राइट एटीट्यूड। अभी खाली एग्जांपल रहता कि हम यहाँ लाइट्स ऑफ रहा है, बस चांटिंग, माता जी आता, हम बोलता कि माता जी बत्ती नहीं बजे, यहाँ ध्यान है, इतना देर से चैंट करता है, तो हमारा एटीट्यूड खराब है कि नहीं? Would there be light? There will not be light. But I just kept chanting. I saw Mataji come. Mataji went there, picked up a stick. Name Marika. I was like, Mataji, so switch on कर this. तो गुरु ऐसे हम लोग के लाइफ में आए, तो गुरु नोस, गुरु हर एक व्यक्ति के, भले गुरु के काम है या शिक्षा गुरु के काम है या साधु के काम है, टू अंडरस्टैंड द साइको फिजिकल नेचर ऑफ द डिसाइपल। दो चीज हम लोग, दो चीज से बनाए, एक तो साइको हम लोग के दिमाग कैसे चले, फिर फिजिकल हम लोग के शरीर कैसे। शायद हमारा दिमाग बहुत तेज हुई ना, और शरीर हमारा योग्य नहीं है, तो हम सोचेगा, मानो अभी ब्रजराज प्रभु के उम्र के लिहाज करते हुए ना, प्रभु के इंटेलिजेंस वर्क करे, लेकिन प्रभु डिसाइड करे कि ना हम 50 किलो बस्ता उठा लेगा, साइको फिजिकल नेचर मैच नहीं करे, ही इज एल्डरली, नहीं, ही कैन डू लिटिल। तो ये रकम गुरु या साधु के मांगे, ऑडियंस के, या तो जो शिष्य है या तो जो फॉलोइंग है, उसके साइको फिजिकल नेचर अंडरस्टैंड करो, एंड देन यू गाइड। तब ऐसे सबके लाइफ में गुरु मांगे, बिकॉज तब अभी एक गृहस्थ है तो गुरु उसके बोले तुम सन्यास ले लो, दूसरा गृहस्थ है, गुरु बोले तुम्हारा धर्म है तुम व्यापार करके और ये सेवा करो, कोई दूसरा गृहस्थ है, गुरु उसके एक दे। तो साइको फिजिकल इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे बोले है कि with the king's attitude, the Brahmana was pleased by the attitude. King inquired. The Brahmana said, "My dear king, with my intelligence I have taken shelter of many spiritual masters. Having gained transcendental understanding from them, I now wander about the earth in liberated condition. Please listen as I discuss." तो बोले हम ढेर गुरु लोगों के शरण लिया, ढेर गुरु लोगों के शरण लिया। तो बोले आप देखेगा हम लोग के हरे कृष्ण संस्था जो है, हम लोग के भक्ति चरण महाराज हरदम बोले, Prabhupada created a ashram within which we have so many gurus to learn from. Because there are certain things you learn from. My mind is confused about how should I live my married life. Then you see someone who is a very ideal married person. Married life में फिर देखेगा कि I have this problem. Then you find there is someone who also had such problem, but he is doing it very successfully in Krishna. So that's why Prabhupada created this international ashram within which all the gurus can operate, and we have so many guidance to learn from. तो यहाँ पे ब्राह्मण बोले हैं कि मैं अनेक गुरु लोग से सीखा। तो बोले, O king, I have taken shelter of 24 gurus who are the following: the earth, air, sky, water, fire, moon, sun, pigeon and python, the sea, moth, honeybee, elephant and honey thief, the deer, the fish, the prostitute Pingla, the Kurara bird, the child and a young girl, Aromaca, serpent, spider and wasp. My dear king, by studying the activities, I have learned the science of the soul. Please listen as what I have learned from each of these gurus.
A sober person, even when harassed by other living beings, should understand that his aggressors are acting helplessly under the control of God, and thus he should never be distracted from the progress of his own path. This rule I have learned from the earth. भूमि से क्या सीखना है? बोले कभी कभी हम लोग लाइफ में क्या दिखता है कि अग्रेसर्स कोई हम लोग के डिस्टर्ब करे, जो हम लोग के डिस्टर्ब करे है उसके पीछे भी तो भगवान के हाथ है. तो बोले अर्थ से हम सीखा कि अपन जो पथ है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं. हम लोग के पथ क्या है? आई एम हियर फॉर माई सेल्फ रियलाइजेशन, आई एम हियर फॉर माई गॉड रियलाइजेशन. तो कोई हम लोग के डिस्टर्ब करे है तो ये समझो कि भगवान उसके पीछे है और वो पर्सन उसके कारण से एक्ट करे. हर एक व्यक्ति संसार में भगवत गीता में बोले ना, सबके नाम अपन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में और क्या एक्ट करे. अभी मानो मैं सिर्फ एग्जांपल, श्रीनिधि प्रभु यहाँ आए, राइट? श्रीनिधि प्रभु यहाँ आवे और जस्ट बिफोर लिविंग होम ही हैड हिज ओन सिचुएशन. तो यहाँ पे आई वो अग्रेशन से डील करी, पैशनेट है, ऐसे 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 क्या करता तो? बिकॉज वी आर नॉट सीइंग बिहाइंड हिम कि व्हाट ही इज कम फ्रॉम. प्रभु तो एग्जांपल देना, you have a bucket of water, warm water, you have a bucket of cold water, and you have a bucket of hot water. So put your hand in the cold water and the hot water, then take both the hands and bring it and put it in lukewarm water. Now the hand that came from cold water, how will this feel? गर्म पानी में से आई से, तो हम के पीछे जो सिचुएशन है वो हम लोग इनके बिहेवियर्स डिटरमिन कर दे. हाउ आई फील, हाउ इमोशनली आई फील, वो डिफरेंस कर दे. तो तभी से वाई समबडी में एक्ट इन अ सर्टेन वे. ब्राह्मण बोले है भूमि केयर करो, कोई यहाँ रास्ता काट दे, कोई यहाँ रास्ता काट दे. ऐसी नहीं कि भूमि बोले यहाँ रास्ता काट दी तो फट जाइए. कोई रास्ता बनाए नहीं से तो रास्ता बनाए नहीं से, कोई टनल बनाए नहीं से ट्रेन जाए लगा उसमें. तो अर्थ के माफी स्टडी ना बोला, यू नो व्हाट. फिर बोले भगवान, आगे बोले ब्राह्मण, अ सेंटली पर्सन शुड लर्न फ्रॉम द माउंटेन टू डिवोट ऑल हिज एफर्ट्स टू द सर्विस ऑफ अदर्स एंड टू मेक द वेलफेयर ऑफ अदर्स द सोल रीजन फॉर हिज एग्जिस्टेंस. पर्वत में मिनरल्स निकले, झरने हैं, वाटरफॉल्स है, सब चीज है. तो बोले पर्वत से सीखो कि हम लोग के जीवन दूसरा रास्ते है. फिर बोले सिमिलरली एज द डिसाइपल ऑफ द ट्री ही शुड लर्न टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू अदर्स. जैसे पेड़ फल उत्पन्न करे दूसरा के वास्ते, तो बोले हम पेड़ के शिष्य बन गया तो उससे ही ज्ञान सीख लिया. A learned sage should take his satisfaction in the simple maintenance of his existence and should not seek satisfaction through gratifying material senses. In other words, one should care for the material body in such a way that one's higher knowledge is not destroyed and so that one's speech and mind are not deviated from self-realization. इतना सुंदर बात है. अपन मन और वचन भक्ति के पद से हटन नहीं दो. तभी से वही रकम अपन आपके कंडक्ट करो कि हम लोग के स्पीच मांगे राइट रहे और हम लोग के मन मांगे राइट रहे. बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो कभी कभी हम लोग अपन आप के, जैसे कल हम बोला था ना, नो इंडिविजुअल डिवोटी इज बिगर देन द ऑर्गेनाइजेशन. So everyone has to take care of his. So you need to take care of your speech and you need to take care of your mind. So don't ऐसा चीज में नहीं लेके जाओ जहाँ हम लोग के मन सके overwhelmed. बहुत एग्जाम्पल है. भागवत में वर्स है, बोले त्यज दुर्जन संसंग सर्गम समसाधु समागमम. बोले रिजेक्ट द एसोसिएशन ऑफ दुर्जन, क्योंकि दुर्जन के एसोसिएशन में जाएगा तो दुर्जन के बाद सुनते सुनते अपन माइंड दुर्जन है. और साधु संग में रहेगा, प्रभुपाद जी के संग में रहेगा, स्क्रिप्चर्स के संग में रहेगा, तो माइंड हम लोग के ऑस्पिशियस है. बोले सेल्फ रिलाइज सोल. फिर बोले कि इवन ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज सराउंडेड बाय इनन्यूमरेबल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. भक्त के जीवन में भी बहुत मटेरियल ऑब्जेक्ट है which possess good and bad qualities. However, one who has transcended material good and evil should not become entangled even when in contact with material objects. Rather, he should act like the
विंड, जो वायु है, जैसे इतना सुंदर वायु बह, तो ये वायु जब आवे है तो कहीं रविश के ऊपर से भी आता हुई, तो लेकिन वायु आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऐसे नहीं कि वायु बोले ओ अब यहाँ पे हम कचरा में आ गया है, अब हम एब्जॉर्ब कर लिया है गंदगी, तो अब हम आगे नहीं जाएगा, अब हम ये रुक जाएगा। हम लोग वायु के माफिक रहो, फ्लो होते रहो, यू स्टिल रिमेन कूल and calm. Although a self-realized soul may live in various material bodies while in this world, experiencing their various qualities and function, he is never entangled, just as the wind which carries various aromas does not actually mix with them. हवा जो ने वो गंदगी के संगे या सुगंध के संगे मिक्स नहीं हो जाए, कैरी कर दे उसके, तो हम लोग भी कैरी करके उसके फॉरवर्ड सकता है, कृष्ण का सकता। A thoughtful sage, even while living within the material body, should understand himself to be pure spirit soul. Similarly, one should see that the spirit soul enters within all the forms of life, both moving and non-moving, and the individual souls are thus all-pervading. A sage should further observe that the Supreme Personality of Godhead, his super soul, is simultaneously present within all things. Both individual soul and super soul can be understood by comparing them to the nature of the sky. Although the sky extends everywhere and everything rests within the sky does not mix with anything, nor can it be divided by anything. आकाश के नहीं सको डिवाइड कर, जो रकम भगवान और जीवात्मा है उसके डिवाइड नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअल नेचर हम लोग सोल से निकाल नहीं पाएगा कभी। Although the mighty wind blows clouds and storms across the sky is never implicated or affected by these activities. Similarly, the spirit soul is actually not actually changed or affected by contact with material nature. Although the living entity enters within a body made of earth, water, fire, and although he is impelled by the three modes of nature created by eternal time, his eternal spiritual nature is never actually affected. हम लोग अपन गुण में रहता है, शरीर कैसे प्राप्त करता है, लेकिन जीवात्मा हरदम अनचेंजिंग। तभी से स्पिरिचुअल लाइफ में ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, कभी भूलो नहीं मानो। जैसे हम लोग ये भूले लगेगा ता हम लोग इनके सब भी अफेक्ट करे लगी सब चीज। जब जाने लगा कि ना हम अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम, एंड दैट्स माय गोल, दैट्स व्हाई आई एम एग्जिस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एनीथिंग, आई एम ओनली डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द सोल। तो वैसे व्हाट इज स्पेशली amongst sadhus is a very common thing. कोई हमें कुछ बोल दी, हम डिस्टर्ब हो गया, नहीं, always remember, अगर कुछ माइंड डिस्टर्ब करे, बोलो no, I am the spirit soul, I am part and parcel of Krishna. Krishna is eternally happy, I am going to be eternally happy. That's my coherent nature. Why should I give myself? Why should I give my control to someone else? हम अपन रथ के रस्सी का है दूसरा के हाथ में दे. You have to keep your control to yourself. What is my control? I am spirit soul. That's my control. भुलाओ नहीं. Saintly persons become powerful by execution of austerity. कैसे saintly person powerful हो जाए? By तपस्या. तो हम के तपस्या को जो मगर साधना में के तपस्या हम देखता आप लोग सबके नया yesterday हम late night program कर दिया, लेकिन this morning you are coming again. तो ये austerity है. इससे हम लोग की शक्ति बढ़े. हम लोग की शक्ति बढ़े. फिर बोले their consciousness is unshakable because they do not try to enjoy anything within the material world. कैसे हम लोग स्थायी रहेगा, अनशेकेबल रहेगा, क्योंकि हम लोग कोई चीज अपन वास्ते एंजॉय नहीं बनता करे. We to offer everything to Krishna and then we get prasad. सब चीज भगवान के आशीर्वाद के रूप में हम लोग के लगे वापस है. लेकिन जो कुछ भी देखो सेम टाइम सोचो कि भगवान के लिए. हम एक थॉट हमारे माइंड में है ना, हम सोचेगा कि ओ माता जी बोला पानी नहीं बरसता, सुबह से तुम लोग यहाँ पानी बरसते लगा. तो हम सोचेगा कि ओ बिकॉज हम आया है तभी आप लोग सब कोई प्रोग्राम है. यू हैव कम हियर फॉर कृष्णा. You have come here for? Why have you come? You are sitting to hear me. You want to hear Krishna. You want to hear Krishna. That's your interest. हम सोचेगा कि ओ नो बिकॉज हम आया प्रोग्राम के लिए तभी आप लोग सब अट्रैक्टेड है. तो हम कृष्णा के अट्रैक्शन अपन ऊपर लेके आएंगे. You know, I am thinking I am Krishna now. You come because you know I am here. No, you come here because you want Krishna. And therefore हम लोग इनके
यहाँ पे बताया कि डोंट ट्राई टू एंजॉय एनीथिंग. सच नेचुरली लिबरेटेड sages accept foodstuffs that are offered to them by destiny, and if by chance they happen to eat contaminated food, they are not affected, just like fire which burns up contaminated substances that are offered to it. मुझे इस पर एग्जाम्पल याद आ गया ना, प्रभु कल पूछा क्वेश्चन की, if you eat unoffered food, तो if you eat unoffered food, no, you should not eat unoffered food. प्रभु लीला में तो एक टाइम प्रभुपाद जी इंडिया में थे, बॉम्बे में गए प्रभुपाद जी was trying to make someone a life member to build the Juhu temple. तो एक आदमी उसको लाइफ मेंबर बनाया कि प्रभुपाद जी उसके घर पर गया, वो लोग भोजन बनाए वाले, प्रभुपाद जी सब वेजिटेरियन भोजन है ना, तो प्रसाद बटा सब लोग खाने के लिए बैठे हैं. तो यू नो हाउ डिवोटीज कभी कभी होते हैं ना, तो इसी से बात जाके पहुंच गया, प्रभुपाद ऊपर बैठा रहा ना, तो बात पहुंच गई प्रभुपाद तक, सब डिवोटी हमें खाना खुशी हम लोग के काम है ना, लोग बोले इसमें प्याज है, इसमें प्याज है, प्रभुपाद लगे. अब प्रभुपाद बोले देयर इज नो अनियन इन दिस, गिव हिम सम मोर, इसके और दो. तो हम लोग नहीं सबको ऐसे बोले कि हम क्या है कि हम लोग प्रभुपाद नहीं है ना, हो गया ना, प्रभुपाद तो खाई से एक टाइम तो हम लोग टाइम खा ले चल जाए. यहाँ पे भी भागवत में कृष्ण बोले हैं, ब्राह्मण बोले हैं यदु महाराज के कि बोले जब एक प्योर डिवोटी हो जाए, जब उसके कॉन्शियसनेस कंप्लीटली कृष्णा में रहे, तब अगर कभी से कोई कंटेमिनेशन आए भी जाए तो वो जैसे आगी में थोड़ा से मैला बिक दो तो वो भी जल जाए. तो कहे के मतलब है हम लोग के मांगो मेक एवरी एफर्ट दैट वी आर बर्निंग लाइक फायर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. हम लोग के मांगे आगी के रकम कृष्णा कॉन्शियसनेस में. और हम लोग कहा है आगी की रकम है कि अगर कोई कंटेमिनेशन आई तो हम लोग जला देगा. और डिवोटी मतलब नहीं, हम लोग क्लास में सुना है कि मांगो डिवोटी आगी रकम रहो, ऐसा आगी रकम डिवोटी कि दूसरा डिवोटी जला दो. ऐसे नहीं, कंटेमिनेशन के ना. कभी कभी प्रीचा लोग जाई प्रीच करे, कोई आदमी कभी कभी टेस्ट करे, ऐसे हम तभी नहीं मैं प्रोग्राम करता रहा, तो मगर डिवोटी लोग जाए तो कोई घरे पानी नहीं पिए. तब एक रोज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करीस. एक्चुअली मैं शाम के घरे, शाम के फादर था, तो शाम के फादर थोड़ा क्रिटिकल रहा ना, क्रिटिक करे. तब अब जाने की और लोग ऐसे बोले हम लोग विश्वनाथ प्रभु सुबह से डिवोटी ना प्रोग्राम करे, वो मांगे अब कुछ टेस्ट करे ना, मांगे टेस्ट करे. तो गया उसके घरे, तो अपन वाइफ के बोले बोले पानी ला, बोले साधु आई से घरे हम लोग के, साधु के सेवा करो पानी दे. अब डिवोटी लोग सब वहाँ संगे जो गिरा, सबको देखे लगा ना, अरे इसके घरे तो लोग मीट खाए हैं, कैसे पानी पिएगा हम लोग ना. तो कोई डिवोटी कोई पिए नहीं. So not that I'm a great devotee, but I knew what he was wanting to do. So they offered me a glass of water. I drank the glass of water. I could see his mood completely changed. जो चैलेंजिंग मूड से वो रिसीव करता रहा, जो चैलेंजिंग मूड से he probably had 10 क्वेश्चन पूछ के हमें would have wanted to show the devotees see it completely changed. So I take lesson from here. So कभी कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है, for preaching you might have to do it, but then that means you still have to keep your fire going. Then just change some extra rounds, do something. Don't खाली बस वही चलते पे नहीं लो. जब ऐसा कुछ हो है, then you must lift yourself. You must burn up higher so that you can burn these things. नहीं तो अगर हम लोग burn up higher नहीं होएगा, हम burn out हो जाएगा. Then you start. तब ऐसे where preaching may be needed, then जैसे कलयुग में बताया गया, कलयुग में संन्यास वर्जित है. No one should take संन्यास in कलयुगा. लेकिन प्रभुपाद preaching के वास्ते तो दे देते. बोले संन्यास जो 50, 70 के 60 years के बाद में है उसके मिले चाहिए. प्रभुपाद जी जब दुनिया से गए, सबसे यंगेस्ट गुरु हम लोग के संस्था में वो टाइम रहा रामेश्वर महाराज, 21 years old. He was a sannyasi, he was the initiation guru. तो कभी कभी इमरजेंसी में सर्टेन थिंग्स करा जावे, बट दैट्स नॉट अ नॉर्म. बट यहाँ से लेसन कौन सी लर्न करे के हम लोग के कृष्णा कॉन्शियसनेस के फाया मांगे एवरी डे. तब ऐसे प्रभुपाद जी कल अव्यात्मा प्रभु में बोलता है ना कि प्रभुपाद जी जो फॉर्मूला दी थे हम लोग के, सैंडविच फॉर्मूला. मॉर्निंग में साधना, फिर दिन में हम लोग के अपन परिवार चला के वास्ते नौकरी चाकरी सब चीज करे पड़े, संझा के फिर साधना.
प्रभुपाद जी जब early days में संस्था सेटअप करी तो it was very normal. मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, जप करो, देन डिवोटीज विल गो टू देयर वर्क, संध्या के फिर गौर आरती, तुलसी पूजा, भगवद गीता रीडिंग. ब्रह्मचारी लोग के प्रभुपाद जी बोलता रहा आश्रम में, बोले बिफोर यू गो टू बेड प्लीज रीड कृष्ण बुक एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क एंड देन यू कैन गो टू बेड. तो सब लोग के करना चाहिए. अभी भी सेम प्रैक्टिस. दवाई वही है. ब्रजराज प्रभु जब यंग बॉय रहा, उस टाइम बुखार लगे तब वो एमोक्सिलिन खावा जाता रहा. आज बुढ़ाई गया, डॉक्टर के जो अभी भी एमोक्सिलिन देवे. पेनाडोल पहले भी खावा जाता रहा, आज भी पेनाडोल चले. तो हम लोग के लाइफ के स्पिरिचुअलिटी के जो मेडिसिन है वो सेम है. ऐसे नहीं कि प्रभुपाद के टाइम ऐसे रहा और अभी के टाइम ऐसे है. तो वी मस्ट कंटिन्यू टू डू दिस एवरी डे. मैं अभी के टाइम्स में there's one special request I have. Everywhere I go, I tell the devotees, everyone, please make a point every day प्रभुपाद जी के एक लेक्चर सुनो. इतना ढेर thousands of lectures है प्रभुपाद जी के. कुछ नहीं, जब खटिया में लेट जाओ तब फोन में बजाए के शायद 5 ही मिनट सुनेगा, फिर सुझ जाएगा. कोई बात नहीं, आज 5 सुनना, बिहान 6 से 10 सुनना, फिर परसों 11 से 15 सुनना. ऐसे बूंद 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 से प्रभुपाद जी के प्योर डिवोटी के आवाज सुने से हम लोग के हृदय के प्रोग्रेस बहुत फास्ट है. वी हैव टू, ही इज आवर फादर. हम लोग के साधारणता आदमी बोले ना, हम लोग के कुल के धर्म है, हम लोग के कुल प्रभुपाद के. बिना प्रभुपाद जी के सुने हम लोग नहीं. गुरु महाराज कहते हो, गुरु महाराज एवरी डे प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने. हमारे गुरुदेव तमा कृष्ण महाराज हमें याद है, हम लोग आता रहा यहाँ बतनी कामा आता रहा, गुरुदेव लटोका जाए, सुबह जाए. शिला गुरुदेव बोले बिकॉज गुरु है ना तो डिसाइपल्स लोग दिन भर मिलते रहे, यहाँ प्रोग्राम वहाँ ऐसे. तो शिला गुरुदेव बोले हमको कहता है जैसे हम सवेरे उठता हम सेम टाइम, उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं रहा, उस टाइम शिला गुरुदेव बोले टेप रिकॉर्डर प्रभुपाद के कैसेट लगाए दे, जैसे उठो प्रभुपाद के कैसेट ऑन कर दो. ब्रश करता है प्रभुपाद के बात सुनाते हैं. वॉशरूम में बैठा है 5 मिनट, वहां प्रभुपाद की आवाज सुनाते हैं. नहाए के निकला प्रभुपाद की आवाज सुनाते हैं. अपन लाइफ में एवरी डे ई प्रभुपाद के ट्रांसडेंटल वॉइस के डोज डालते रहो. यही दबाइए एंड दे विल कीप यू गोइंग. तो हाँ, सेंटली पर्सन हम लोग ऐसे तो कृष्ण में फायर करते. तो ऐसे तो 24 गुरुज है. विल पे रिस्पेक्ट टू टाइम. We'll stop here. Unlimited. Bhagwan Ananta, Hari Ananta, Hari Katha Ananta. We'll stop here. No? But these are some lessons. How you can learn things from anyone and everyone. Just keep thinking of Krishna, then you can see how I can find qualities of Krishna. So any question or comment? It looks so nice, I see Mataji, I feel so happy that Krishna is so attractive. कोई एक दफे कृष्णा के लग जी फिर नहीं छोड़ते. पता है बोले कि अगर कृष्णा के, अगर बोले संसार के मोह माया नहीं छोड़े मंगना तो जमुना के तट पे जाए के जो वो श्याम रंग के जो ब्लैक बॉय है, बोले डोंट एवर गो एंड सी दैट ब्लैक बॉय. एक दफे वो आँखी में उतर जाए फिर निकली नहीं मन में से. So thank you very much. चैतन्य वाणी माता जी और हैप्पी कृष्ण कॉन्शियसनेस. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. भक्त